औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड टू जियो इन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि एडीपी के हवाले से या बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के हवाले से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक्स नहीं किया जाता, तो इससे चैनल की रेटिंग पर काफ़ी असर पड़ता है। तो काइंडली इस चैनल को और इस वीडियो को, जितने भी वीडियोस हैं, इनको सबको लाइक ज़रूर किया करें आप। अब सबसे पहले एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं, अब जस्ट ये आपके सामने प्ले कर दूँगा, आप लोग खुद ही पढ़िएगा। और जो आंसर्स हैं वो साथ ही रेड कलर में उन्हें हाईलाइट किया गया है। इंडस्ट्री इज़ विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ आल्सो कॉल्ड एज वाइट कॉलर। द करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा ऑप्शन, quaternary. Which type of economic activity is also called as pink collar? Tertiary. Beta option is the correct option. The systematic study of land, water, air and life on the earth is physical geography. अब फिज़िकल जियोग्राफी के अंदर जितनी भी सिस्टमेटिक स्टडी होती है लैंड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड, वो फिज़िकल जियोग्राफी में ही उसको डिस्कस किया जाता है। मैथमेटिकल जियोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ कार्टोग्राफी। टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड सर्विसेज। गोल्ड कॉलर वर्कर फॉल इन क्वाइनरी एक्टिविटी। Which of the following pertains of study of landforms? Geomorphology. Which of the following is studies under physical geography? Soil. Which are the two main branches of geography? Delta option is the correct one. Meteorology and climatology. Which atmospheric layer contains ions in wireless communications? Thermosphere is the correct option. Lowest layer of the atmosphere is troposphere. Layer of atmosphere in which ozone lies is stratosphere. Which is the warmest layer of the atmosphere? Thermosphere is the warmest layer of the atmosphere. Normal lapse rate of atmosphere is 1 degree centigrade. In settlement pattern, settlement that occur river, coast and railways are classified as linear. A settlement in which majority of population is involved in primary activity is called as village. The following planet is considered as Earth's twin. Venus. The following planet is near to the Sun. Mercury. The moon moves around the earth in about days. 27.
The moon is what type of astronomical body? Which type of astronomical body? Satellite. Earth is at of what distance from Sun? 150 million kilometer. The majority of asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. The following planet takes maximum time for one spin on its axis. Venus. The following planet takes maximum time for one orbit around Sun. Beta option is the correct one. Normal lapse rate of the atmosphere is 6.5 degree. Atmospheric pressure at sea level is 1013. Nitrogen is found up to height of 128 km. Nitrogen and oxygen both make the part of atmosphere 99%. In which layer of the atmosphere ozone is found? Stratosphere. The instrument which is used to measure the atmospheric pressure is called barometer. The winds blowing from subtropical high pressure belt towards equatorial low pressure belt, trade winds. The temperature decreases with the height at an average of 6.5 is called normal lapse rate. In the air, the amount of water vapor is classified as humidity. The gaseous layer that surrounds the earth is called atmosphere. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। बाकी आप लोग अपने सिलेबस को भी कवर कीजिएगा। जितने भी आप लोगों को जो बेसिक्स हैं चैप्टर्स के नेम से रिलेटेड और उनके अंदर जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनके हिसाब से आप लोगों ने वो लाजमी याद करने हैं। राइट अ नोट ऑन लिथोस्फीयर, डिफाइन कल्चर जियोग्राफी, राइट अ नोट ऑन सोलर सिस्टम, राइट अ नोट ऑन क्लाइमेटोलॉजी, राइट अ नोट ऑन मेट्रोलॉजी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोमी, secondary economics activity, weather element of humidity, define geography and write about the main branches of geography briefly. अब ज़ाहिर बात है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स, उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं, उनकी टाइप्स वो इम्पोर्टेंट होती हैं। उनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आप लोगों की इन्वायरमेंट है, चाहे जियो है, चाहे हेल्थ है, चाहे बायो है, जो भी हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होती हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसकी जो सब ब्रांचेस होती हैं उसकी डेफिनेशन ये इम्पोर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? राइट अप प्रॉब्लम्स काज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, give advantage of rural settlement, write a short note on lithosphere, write a short note on solar system। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने सारे ही एक बार रिपीट करने हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं टॉपिक्स के हवाले से। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के एडीपी लेक्चर्स में मैंने स्कीमिंग स्कैनिंग को एक्सप्लेन किया था, जिसमें ये बताया गया था कि एक टॉपिक को किस तरह से लिखा जाता है
स्किमिंग स्कैनिंग के अंदर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि टॉपिक को किस तरह से कवर किया जाता है। अब वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ और उनके पास किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है इतना, जस्ट वो पेपर को पास करना चाहते हैं, तो उन्हें ये जो रीडिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे कि जो सबसे पहले जो टॉपिक की हेडिंग है, हेडिंग को गौर से पढ़ेंगे, उसके बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग वो उनके माइंड में है उसको वो दोबारा से रिकॉल करेंगे, और उसको दोहराने के बाद फिर क्या करना है कि जो आपको गिवन डेफिनेशन होंगी उन्हें याद कीजिए। इसके अलावा जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं और एंडिंग पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है उसमें उस पूरे टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जा रही होती है कि आगे क्या बयान किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी बोल्ड वर्ड्स होते हैं, इटॉलिक वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे डेट्स आ जाती हैं, अब यहाँ पर प्रेशर का जिक्र था, डिफरेंट किस्म के नेम्स आ रहे थे, तो इस तरह के वर्ड्स को गौर से देखा जाता है ताकि ईज़िली बच्चा जो है कम टाइम के अंदर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके। तो इस तरह से आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लेट्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स। अब चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इन टर्म्स से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी आप लोगों को मिस्टेक मिले तो उसे इग्नोर कीजिएगा। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन टंड्रा बायोमी। डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स इन डिटेल। राइट अ डिटेल नोट ऑन रॉक्स की ये कोई किस्म है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ सेटलमेंट? राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन डिटेल। राइट डिटेल नोट ऑन टेक्टोनिक मूवमेंट। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़। बाकी एंड पे भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग, बाकी अपने जितने भी आपके फ़ेलोज़ हैं, क्लास फ़ेलोज़ हैं, जूनियर्स हैं, अब ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ चुके हैं कॉलेजेस के अंदर, तो उनको ज़रूर गाइड कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर किसी किस्म के कोई आप लोगों से वो चार्जेस नहीं लिए जाते, बस क्या है कि एक हेल्प हो जाती है आप लोगों की, और इस चैनल का कोई मकसद नहीं है। तो काइंडली जितने भी अब जिस तरह आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जितने भी आपको स्टूडेंट्स मिलें, आप सब उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनकी भी किसी न किसी तरीके से हेल्प की जा सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।